Assalamualaikum boys, welcome to Peshawar Model School for online geo class of class 5 for session 2021 to 2022. So this is your second online geo class. You can see the book picture on your screen. This is your geo book. In the previous lecture, I will give you a short summary of previous lecture. In previous lecture, we read about the world map, in which we read the ocean and continents, and after the ocean and continents, we read the facts about the world. So, in this next class, we will read about unit number 2, that is Europe, on page number 11 on your books. Take out your book, page number 11 and unit number 2. So you can see the different places that is located in Europe, beautiful places, so many places and beautiful places that are located in Europe. As I told you, geo is basically the study of earth, and on earth there are so many countries. तो उन countries को one by one हम study करेंगे. So the second unit is about Europe. Fact about Europe. Total countries 45. As I told you, there are 7 continents in which Europe is also one of the continent. और मैंने बताया था कि एक continent में बहुत सारी countries होती हैं. इसी तरह यूरोप में 45 countries हैं. इन्हीं 45 countries में largest country is Russia. 45 countries है. इसको एरिया के लिहाज से सेपरेट किया हुआ है, एक लिस्ट बनाई हुई है जिसमें रशिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री. स्मॉलेस्ट सिटी इज़ वेटिकन सिटी. मेजर रिलीजन क्रिश्चियनिटी and major currencies euro and pound. So these are the 5 facts about Europe. There are so many countries in Europe, total countries 45, in which the largest country is Russia, in which smallest city is Vatican City. Major religion, जैसे पाकिस्तान में major religion आपको पता है इस्लाम है. So in Europe the major religion is Christianity and major currencies are euro and pound. जैसे पाकिस्तान में रुपी है, इसी तरह यूरोप में यूरो और पाउंड है. हर कंट्री की करेंसी डिफरेंट होती है दूसरी कंट्री से. Okay, the next thing is Scandinavian countries. So what are the Scandinavian countries? किसी इलाके में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनके कल्चर हिस्ट्री एक दूसरे से रिलेटेड है, तो उन इलाकों को उन्होंने नाम दिया है which is called Scandinavian countries. A few countries in Northern Europe are called Scandinavian countries. कुछ अब यूरोप है, यूरोप में फिर कौन सी जगह? नॉर्दर्न यूरोप. उनमें कुछ 5 कंट्रीज़ हैं. इन 5 कंट्रीज़ को ओवरऑल इन्होंने नेम दिया हुआ है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़. यू कैन क्लियरली सी द फर्स्ट वन इज़ नॉर्वे, द सेकेंड वन इज़ स्वीडन, द थर्ड वन इज़ डेनमार्क, द फोर्थ वन इज़ फिनलैंड एंड द फिफ्थ वन इज़ आइसलैंड. सो these 5 countries are called Scandinavian countries and they are located in Northern Europe. Okay, next. Rivers that flow through Europe. हर जगह में, हर कंट्री में, हर सिटी में कुछ रिवर्स होते हैं. पाकिस्तान में भी हैं. पाकिस्तान में जैसे इंडस रिवर इज़ द लार्जेस्ट रिवर. इसी तरह यूरोप में भी कुछ रिवर्स हैं जिनके नाम ये 7 हैं: डेन्यूब, एल्ब, राइन, रोन, थेम्स, सिन, वोल्गा. आई विल रिपीट: डेन्यूब, एल्ब, Rhine, Rhone, Thames, Seine, Volga. So these are the 7 rivers that flow through Europe. Okay. United Kingdom. As I said, there are 45 countries in Europe, so it is difficult for us to study each country. So they take out only one country and that is United Kingdom. यूरोप में से इन्होंने एक यूनाइटेड किंगडम को निकाला. हम यूनाइटेड किंगडम को पढ़ेंगे. यूरोप इज़ अ कॉन्टिनेंट और इसी कॉन्टिनेंट से उन्होंने एक country निकाली, that is United Kingdom. United Kingdom is made up of 4 nations. United Kingdom is basically 4 nations से बनी हुई है. Which 4 nations? That is England,
Wales, Scotland, and Northern Ireland. These are the four nations that made United Kingdom. You can clearly see on your screen there is a map जिसके सेंटर में लिखा हुआ है यूनाइटेड किंगडम, एंड यूनाइटेड किंगडम को इर्द गिर्द किसी ने चार नेशन ने घेरा हुआ है, एंड दीज आर द England, Wales, Scotland and Northern Ireland. So these are basically four nations that made the United Kingdom. Okay, next. Its important cities are Birmingham, Manchester, Edinburgh and Glasgow. They are talking about United Kingdom. United Kingdom is a country and these four cities are the important cities of United Kingdom. You can clearly see these four: Birmingham, Manchester, Edinburgh and Glasgow. Liverpool and Newcastle is also the cities of United Kingdom, but these are the four important cities of the United Kingdom. जैसे पेशावर में अगर important cities को देखें तो कराची है, लाहौर हो गया, कैपिटल इस्लामाबाद हो गया. So same is in United Kingdom. These four cities are the important cities of the United Kingdom. Okay, it is separated from continents Europe by the English Channel Sea. इसी यूनाइटेड किंगडम को यूरोप से अलहदा किया हुआ है किसके ज़रिए? इंग्लिश चैनल. English Channel is basically the name of the sea. It is also simply called channel. It is an arm of Atlantic Ocean. Arm of Atlantic Ocean का मतलब ये है कि Atlantic Ocean से आया हुआ है. जैसे आपको पता है there are 5 oceans in which Atlantic Ocean is also an ocean, and this English Sea is the arm of Atlantic Ocean. You can clearly see it is separating this area from this area. It is flow through and it is flow between these two places. Okay, अगर आप यहाँ पर देखें United Kingdom made up of 4 nations and it is separating it from the France. You can clearly see English Channel clearly लिखा हुआ है यहाँ पे Atlantic Ocean. जैसे मैंने आपको बताया it is an arm of Atlantic Ocean. ये arm है Atlantic Ocean का English Channel and it is separating these two places. ये जितना blue area है it is water. So this is English Channel and it is also simply called channel. Okay, rain is very common at any time of the year, so the country is very lush green. They are talking about the United Kingdom. United Kingdom के बारे में बता रहे हैं कि वहाँ पर एनी टाइम बारिश हो सकती है. ज़रूरी नहीं है जैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए तो बारिश हो जाती है, जैसे मानसून की बारिश है, मौसम के मुताबिक बारिश होती है, लेकिन यहाँ पर कभी भी किसी वक्त भी बारिश हो सकती है. जैसे सूरज सन निकला होता है बहुत तेज़, लेकिन एकदम से क्लाउडी वेदर हो जाता है और बारिश शुरू हो जाती है. सो बिकॉज ऑफ रेन द कंट्री इज़ वेरी लश ग्रीन. लश ग्रीन का मतलब है बहुत ज़्यादा ग्रीनरी. यू कैन क्लियरली सी इन दीज टू पिक्चर कि पहाड़ कैसे ग्रीनरी से भरे हुए हैं. आपको पता है कि जब बारिश होती है तो प्लांट्स को जब पानी मिलता है तो वो ज़्यादा अच्छी तरह उगते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ग्रीनरी ज़्यादा है कि बारिश इनको पानी की मकदार पूरी मिल रही है. सो दैट्स वाई द कंट्री इज़ वेरी लश ग्रीन. ओके, लंडन इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटी इन द वर्ल्ड. इट हैज़ मैनी हिस्टोरिक बिल्डिंग एंड फेमस museums. London is the second most important city in the world. Now they are not saying that London is the second most important city in Europe. They are saying कि लंदन इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटी इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड के बारे में बता रहे हैं कि वो सेकेंड इम्पॉर्टेंट सिटी है. क्यों? बिकॉज इट हैज़ मैनी हिस्टोरिक बिल्डिंग एंड फेमस म्यूज़ियम. जैसे आपके पेशावर में हैं मस्जिद मोहब्बत खान, किला बालासार, ये जितनी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, पेशावर म्यूज़ियम है. इसी तरह लंदन एक सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटी भी है और यहाँ पर बहुत हिस्टोरिक का मतलब है तारीख़ी जगहें जो होती हैं, तो यहाँ पर बहुत तारीख़ी म्यूज़ियम्स भी हैं और बिल्डिंग्स भी है. यू कैन क्लियरली सी द आर्किटेक्चर ऑफ दीज टू बिल्डिंग कितनी ज़बरदस्त तरीके से बनी हुई हैं.
तो इसको देखने के लिए भी वहाँ पर लोग आते हैं. सो दैट्स वाई इट हैज़ मैनी हिस्टोरिक बिल्डिंग एंड फेमस म्यूजियम एंड लंदन इज़ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी इन द वर्ल्ड. रिमेंबर दिस, इट इज़ सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी इन द वर्ल्ड, नॉट इन द कंट्री. ओके. United Kingdom, UK is the short form of United Kingdom, has top class universities like Oxford and Cambridge University. ओके, ये दो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये बहुत फेमस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड. यू नो दैट दीज टू यूनिवर्सिटीज़ आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड. क्यों? जैसे पेशावर में आपकी पेशावर यूनिवर्सिटी में फ़ेमस हैं और यहाँ पर अगर आप लम्स देखें, नर्स देखें, जहाँ पर एडमिशन मिलना बहुत, एम साइंसेस देखिए वहाँ पर एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल से मिलता है. इसी तरह यूनाइटेड किंगडम दीज टू यूनिवर्सिटीज़ आर फेमस. यहाँ पर एडमिशन लेना बहुत मुश्किल है. द फर्स्ट पिक्चर इज़ ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड द सेकेंड पिक्चर इज़ ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. आपको पता है जो हमारे रिसेंट प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, ही इज़ आल्सो ग्रेजुएटेड फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. वो भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं. सो दिस इज़ बेसिकली द फेमस यूनिवर्सिटी एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू टेक एडमिशन इन दीज टू यूनिवर्सिटीज़. दीज आर द फेमस यूनिवर्सिटीज़. जो चीज़ फेमस होती है ज़ाहिर सी बात है कि वहाँ पर एडमिशन लेना भी फिर मुश्किल ही हो जाता है. ओके. फिश and chips is the national dish of UK. UK means United Kingdom. Fish and chips, you can clearly see the picture of fish and chips. यहाँ पर भी लोग बहुत खाते हैं, लेकिन यहाँ वहाँ पर जैसे नेशनल, आपको पता है, आपने पढ़ा भी होगा, यहाँ पर कुछ एक कंट्री की नेशनल ड्रिंक्स होते हैं, जैसे कि पाकिस्तान का नेशनल एनिमल मारखोर, नेशनल जूस शुगर केन, नेशनल फ्लावर जैस्मिन. इसी तरह यूके का, यूनाइटेड किंगडम का जो नेशनल डिश है वो फ़िश एंड चिप्स है. फ़िश और चिप्स लाइट भी होते हैं और आपको पता है टेस्टी भी होते हैं. सो बेसिकली ये वहाँ पर लोग, नेशनल का मतलब यही है कि वहाँ पर ये लोग, बहुत मेजॉरिटी जो लोग हैं वो फ़िश और चिप्स खाते हैं. दिस इज़ द नेशनल डिश एंड इट इज़ ईज़िली अवेलेबल देयर. ओके. यहाँ पर पेशावर में देखें तो बिरयानी मुझे लगता है कि वो हमारी नेशनल डिश होती है, लोग बहुत खाते हैं, सबको पसंद भी है. इसी तरह यूनाइटेड किंगडम में फ़िश एंड चिप्स इज़ द नेशनल डिश ऑफ यूके. ओके. लैंडमार्क्स. बिग Ben and Tower Bridge in London are the important landmarks and symbol of UK. Big Ben, what is Big Ben? You can see the picture of this tower. This is Big Ben. It is basically clock. ये क्लॉक है और ये बिल्डिंग, जो भी बिल्डिंग होती है, यू नो, बिल्डिंग इज़ इन शेप ऑफ स्क्वायर एंड यू नो देयर आर 4 साइड ऑफ स्क्वायर. 4 साइड होते हैं स्क्वायर के और ये बिल्डिंग जो है ये स्क्वायर शेप की है. तो इसकी 4 साइड पर क्लॉक लगी हुई है एंड इट इज़ वेरी टॉल. ये बहुत टॉल है. बिग Ben, बिग जैसे बिग, आपको पता है बिग कैसे क्या, बड़ा. बिग Ben, इट इज़ बेसिकली द क्लॉक टावर. ये क्लॉक एक बिल्डिंग है जिसकी चारों तरफ क्लॉक है. ये बहुत टॉल है और ये इसको दूर से भी लोग, ये जो टावर है इसको दूर से भी नज़र आ जाता है. अगर आप कहीं दूर हैं तो आप दूर से भी इसको देख सकते हैं क्योंकि ये बहुत टॉल है और इसकी चारों तरफ क्लॉक है. और ये जब रात होती है तो ये इल्यूमिनेटेड हो जाए. इल्यूमिनेटेड का मतलब है लाइट अप हो जाता है. यू कैन क्लियरली सी द लाइट्स इन द बिग Ben. यहाँ पर देखिए लाइट्स ही लाइट, फुल नीचे से लेकर टॉप तक लाइट्स लगी हुई हैं. सो बेसिकली दिस इज़ द बिग Ben एंड दिस इज़ द लैंडमार्क्स. व्हाट इज़ लैंडमार्क? जैसे पेशावर में मस्जिद मोहब्बत ख़ान है, खैबर पास है. दीज आर द लैंडमार्क्स ऑफ पेशावर. इसी तरह यूनाइटेड किंगडम के लैंडमार्क में एक आता है बिग Ben. सो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ द बिग Ben विच इज़ अ क्लॉक टावर लाइक, और जिसमें लाइट्स लगी हुई हैं. ये बहुत टॉल है, दूर से भी नज़र आ सकता है, दूर से भी आप इसको देख सकते हैं. द सेकेंड लैंडमार्क इन यूके इज़ टावर ब्रिज. दिस इज़ बेसिकली द टावर ब्रिज, जो क्या है, डिवाइड भी होती है. जैसे ये बीच में देखें, कुल भी सकती हैं. सो बेसिकली दिस इज़ द सेकेंड लैंडमार्क ऑफ यूके. दिस इज़ द ब्रिज. और ये जो ब्रिज है ना, ये बिल्कुल सेंटर में है, यूनाइटेड किंगडम के बिल्कुल सेंटर में है, जो एक रिवर के ऊपर बना हुआ है. और ये जो है बीच में
स्प्लिट अप भी होती है. So this is also the landmark of the United Kingdom, Big Ben and Tower Bridge. Remember that if someone asks you that what are the landmarks of United Kingdom, so you can easily answer that the Big Ben and Tower Bridge are the landmark of and are the important landmark of United Kingdom. Okay, next. Buckingham Palace in London is the home of Queen. लंदन, एज आई टोल्ड यू, लंदन इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटी. अब क्यों इम्पॉर्टेंट है अब आपको पता चलेगा, क्योंकि वहाँ पर क्वीन का घर है. क्वीन का नाम जैसे आपको पता है एलिज़ाबेथ, क्वीन एलिज़ाबेथ उनका नाम है. आपने टीवी पर भी देखा होगा. तो वो जो है वो बकिंगम पैलेस में रहती है. पैलेस मीन्स महल में रहती है जिसका नाम बकिंगम है और वो लंदन में है. और ये बहुत ही खूबसूरत पैलेस है. यू कैन क्लियरली सी दिस टू पिक्चर ऑफ बकिंगम पैलेस. ये देखें, यहाँ पर अगर कोई ओकेजन होता है, कोई फंक्शन होता है, कोई मैरिज होता है तो बहुत सारे लोग उसे देखने आते हैं क्योंकि वो वहाँ की क्वीन है. यहाँ पर अगर आप देखें इमरान खान जब आते हैं तो बहुत सारे लोग उसके इस्तकबाल में आते हैं. इसी तरह क्वीन के इस्तकबाल में वो सारी कंट्री के लोग आते हैं. शी इज़ द क्वीन ऑफ द कंट्री. आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो करेंसी है उसके ऊपर भी क्वीन की पिक्चर होती है. क्यों? क्योंकि वो वहाँ की मलिका है, क्वीन है. और दीज टू पिक्चर्स आर द पिक्चर ऑफ बकिंगम पैलेस इन लंदन. एंड लंदन इज़ द इम्पॉर्टेंट सिटी. वाई? बिकॉज देयर इज़ अ हाउस ऑफ क्वीन देयर. ओके. Thames River flow through the center of London. As I told you कि ये जो मैंने आपको बताया था टावर ब्रिज, you can see the tower bridge and it is located over the रिवर. ये रिवर के ऊपर है. तो वो कौन सा रिवर है? उस रिवर का नाम थेम्स है और वो बिल्कुल सेंटर में है, सेंटर ऑफ लंदन. तो जैसे मैंने आपको बताया कि टावर ब्रिज सेंटर में है तो इट मीन्स कि वो रिवर भी सेंटर में है, इसलिए उसके ऊपर जो ब्रिज है वो भी सेंटर में है. एंड इन दिस पिक्चर यू कैन क्लियरली सी दैट bridge is in the center and both sides of the bridge are completely covered with different houses, buildings. ये दोनों साइड जो है वो बिल्कुल कवर है बिल्डिंग्स में और बीच में ही ये रिवर है. एंड द नेम ऑफ द रिवर इज़ थेम्स रिवर एंड इट इज़ लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द लंदन. और इसके रिवर में जो ब्रिज लगी हुई है वो उसका नाम है टावर ब्रिज. एंड टावर ब्रिज इज़ बेसिकली द लैंडमार्क ऑफ लंदन. Clear? I hope so it will be clear to you. Okay, next. Scotland is famous for its beautiful lush green mountains and golf courses. Golf courses, what is golf courses? golf नहीं होते जो जिसकी छोटी सी वो स्टिक होती है और छोटा सा बॉल होता है और वो जो खेलते हैं उसे गोल्फ कहते हैं. So Scotland is also a, as I told you, यूनाइटेड किंगडम के जो एक 4 नेशन से बना हुआ है, in which Scotland is also one of them. So Scotland is famous. Why Scotland is famous? Because for its beautiful lush green mountains. वहाँ पर जो mountains हैं, मैंने पिछले pictures में बताया कि यहाँ पर बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं. That's why the country is lush green. इसी तरह यहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है और ये इस माउंटेन की ग्रीनरी की वजह से फेमस भी है. और गोल्फ कोर्सेज, यू कैन सी दीज 2 पिक्चर्स आर द पिक्चर ऑफ गोल्फ कोर्सेज. कितनी मज़े की जगह है, ऐसा लगता है कोई गार्डन है. बहुत मज़े की जगह है क्योंकि वहाँ पे बारिश ज़्यादा है, ग्रीनरी ज़्यादा है और जहाँ पर ग्रीनरी ज़्यादा होती है वो वैसे भी इंसान को वहाँ पर रहना और उसे देखना अच्छा लगता है. So Scotland is famous for its beautiful lush green mountains and golf courses. Okay. Next, cricket and football are popular games in UK and were also invented there. क्रिकेट, यू नो व्हाट इज़ क्रिकेट. आप रोज़ टीवी पर भी देखते हैं और ज़्यादातर बच्चों को भी क्रिकेट खेलना, बॉयज़ को क्रिकेट खेलना पसंद है. और फुटबॉल, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ फुटबॉल भी आप अक्सर स्कूल में खेलते हैं. यहाँ पर फुटबॉल ये भी बच्चों को पसंद है. तो दीज आर द पॉपुलर गेम्स, मशहूर गेम्स है. जैसे पेशावर में क्रिकेट है, हॉकी इज़ द नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान. सो इसी तरह वहाँ पर क्रिकेट एंड फुटबॉल लोगों बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं. एंड दीज आर द फेमस गेम इन यूनाइटेड किंगडम और ये वहीं पर बने हुए हैं. सो दीज 2 गेम्स आर फेमस, वहाँ पर लोग इसको पसंद भी करते हैं. ओके, दिस वॉज ऑल अबाउट द यूरोप. एंड इन यूरोप in which we studied the यूनाइटेड किंगडम सिटी. यूनाइटेड किंगडम में हमने मुख्तलिफ़ चीज़ें पढ़ी.
Still, if you have any question, you can ask me in the next class. I hope so it will be clear to you. Thank you so much.